Assalamu alaikum students, how are you? Today our topic is that how to add the polynomials and subtract the polynomials. मीन अलजबरे के अंदर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को किस तरह से करते हैं. Before to explain the addition and the subtraction of the procedure, I want to explain some rules. Some of the students are confused that when we add or when we subtract, addition and subtraction, we have to careful about that one, that these are the symbols plus and plus. There are the four combinations of the two types of the polynomials or polynomials in the numbers. Then plus, minus, or minus plus, or minus and minus. There are the four types of the operation which will arise in front of you when you are solving the question. Now keep one thing in your mind: when the signs are same, at that time you have to use the procedure of the addition. Even the signs are negative, you will also apply the procedure of the addition. Here I am talking about addition and subtraction, not going to multiplication. If the multiplication, the operation is the change. Okay, so we have to use the procedure of addition when the signs are same. जब sign same होगी तो हमें add करना है और उसके आगे भी हमें same sign ही use करनी पड़ेगी. अगर minus है तो minus और plus है तो plus. I will explain with one example, like 2x plus 3x. First of all, before adding or subtracting in algebra, we have to care about that one. The terms must be like terms होनी चाहिए. वो terms हमारे पास change नहीं होनी चाहिए. Like terms mean x term is possible to add or subtract with only x term. This is a coefficient. Coefficient change हो सकता है लेकिन variable same होना चाहिए. अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए. अगर x square हुआ, y हुआ, not possible to add or not possible to subtract. अब दोनों के साथ प्लस साइन है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस 5x. राइट? सेम वे जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो हमारे पास अगर ये माइनस 2x एंड माइनस 3x है, then again we have to use the procedure of addition, but the sign will be the same. You will use that minus 5x. Now keep one thing in your mind कि हमारे ज़हन में कैसे रहेगा कि माइनस की साइन है, because most of students are checking that there is a negative sign, that's why they are using subtraction procedure. This is only a symbol. This is only a symbol, not a procedure. Procedure is this one, addition or subtraction. I can give you one practical example. जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी पॉकेट में x फॉर एग्जाम्पल 10 दरहम का नोट है, ठीक है, आपके पास 10 दरहम वाले दो नोट आपके पास ऑलरेडी आपकी पॉकेट में है. 30 दरहम यानी 10-10 के 3 नोट आपको किसी और ने दिए, आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दी. देन हाउ मच पॉकेट मनी इन योर पॉकेट नाउ? दैट इज 2 + 3, यानी दो नोट ये थे 10-10 वाले 10-10 और 3 आपको नोट और मिले 10-10 के. तो टोटल कितने नोट हो गए? 5 नोट हो गए 10-10 के, यानी 50 दरहम इज इन योर पॉकेट. राइट? एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लाइक दैट? जैसे आपने एक ग्रोसरी की शॉप से उसका 20 दरहम लोन देना है. 2 × x मीन 10 दरहम है ना. अगर x इज इक्वल टू अज्यूम दैट 10, x क्या हमारे पास 10, यानी 10-10 के दो नोट आपने एक ग्रोसरी वाले को देने हैं या अपने एक दोस्त को देने हैं, और किसी और बंदे से भी आपने 30 दरहम लोन लिया हुआ है. तो टोटल लोन 20 दरहम आपने एक के देने हैं, 30 दरहम आपने दूसरे के देने हैं. तो टोटल हाउ मच यू हैव टू पे द लोन? दैट इज द 5x. ये नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि इट विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम योर पॉकेट, यानी अगर आपको यहां से 50 दरहम मिला है तो ये 50 दरहम आपकी पॉकेट से निकल के जो आपने लोन लिया हुआ है, ये आपके पास क्या है? लोन नेगेटिव. ये आपके पास क्या है? क्रेडिट पॉजिटिव इन योर पॉकेट.
तो यहां पे अगर दोनों की साइन नेगेटिव होगी या दोनों की साइन पॉजिटिव होगी, देन यू हैव टू यूज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, राइट। अब आपके पास आ जाते हैं व्हेन द साइन आर चेंज, when the signs are changed plus minus or minus plus, then you have to use the procedure of subtraction. Which procedure you have to use that one? Subtraction. Here also subtraction or subtract, same meaning. Subtract or subtraction. For example, if here is the plus 2x and minus 3x, you can see that the both signs are changed. Both signs are changed. It means that you have to use the procedure of subtraction and the sign of the big number you will use that. अगर बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे सब्ट्रैक्ट के बाद, अगर बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होगी तो बड़े नंबर के बाद हम भी पॉजिटिव साइन लगाएंगे एज द साइन ऑफ दैट वन. दैट इज द मैथमेटिकल रूल दैट यू विल राइट दैट माइनस एक्स, बिकॉज माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और 1 हमारे पास जैसे पता है नहीं लिखते, क्यों लिखते? बिकॉज हाउ मेनी एक्सेस आ रही है? 1x. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कीप इन योर माइंड दैट आई विल गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आपके पास 20 दिरहम आपकी पॉकेट में है, क्योंकि एक्स मैंने 10 कंसीडर किया हुआ है, लेकिन आपने जो अपने दोस्त से लोन लिया था वो कितना लिया था? 30 दिरहम. 3x 30 दिरहम. व्हेन 20 दिरहम आपके पास पॉकेट मनी आई, आपने उसको 20 दिरहम दे दिए, तो उसका लोन क्या पूरा खत्म हो गया? नहीं. गुड. सो हाउ मच लोन यू हैव टू पे मोर? 10. तो x इज इक्वल टू 10, तो माइनस 10. इट मीन्स दैट जब आपको नेक्स्ट पॉकेट मनी मिलेगी तो पहले आप उसका 10 दिरहम लोन पे करोगे, माइनस x. Okay, that is a practical example. If it's like that, minus 2x plus 3x, you can see that again signs are changed. Sign फिर से change होगी ना? जैसे sign फिर से change हुई, again you have to use the procedure of subtraction, but the sign of the big number. So big number is having the which sign? That is the प्लस साइन. प्लस साइन यूज करेंगे और प्लस एक्स या 1x होता है या x है, मीनिंग सेम है. प्लस x का मतलब क्या है? दैट इज x रुपीज इन योर पॉकेट, यानी आपके पास 30 दिरहम है, 20 दिरहम आपने लोन लिया हुआ था. जब आपने उसको 20 दिरहम लोन दे दिया, देन हाउ मच अमाउंट इन योर पॉकेट? 10 दिरहम. गुड. तो आपके पास x, आपके पास मैंने जैसे कहा था कि x इज इक्वल टू 10 आप कंसीडर करें, तो इस तरह से आपके पास है. Now, what conclude the result in your mind? Good. When the signs are same in addition and subtraction. So the signs are same, then we have to use the procedure of addition or add. Okay. When the signs are different, two variables and दो numbers उनके दरमियान signs क्या है? Different है. Then what you will use that? You have to use the procedure of subtraction, and the sign of the big number will come after equal sign. Is that clear? Or but before addition, you have to be very clear that terms are possible to like terms. अगर वो terms हमारे पास like terms नहीं है, then you cannot possible to add. For example, अगर ये हमारे पास होता 3x plus 2y, तो it's, if you will write that 5xy, then it's absolutely wrong. ये पॉसिबल नहीं है इसको ऐड करना. मल्टीप्लाई हो सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड. व्हाई? बिकॉज x एंड y बोथ हैव नॉट अ लाइक टर्म्स. x टर्म इज पॉसिबल टू x. जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं यूं देता हूं, गर्ल्स सेक्शन में वी आर एडिंग द गर्ल्स, बॉयज सेक्शन में वी आर एडिंग द बॉयज, यानी बॉयज को बॉयज के साथ ऐड करते हैं, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ ऐड करते हैं. देन वी विल से द सेक्शन ए इज हैविंग 10 girls and the section B is having 3 girls, but girls and boys अगर हमारे पास classes separate है, we cannot add the same time. Okay? तो हमारे पास like terms का होने का मतलब ये कि same terms को हम add कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? subtract कर सकते हैं, और ये आपके पास rule है. Now we have to come to the exercise 5.2 जो हमारा टॉपिक है आज. 5.2 एक्सरसाइज है
क्लास 8th की, उसमें ये रूल्स यूज होने थे, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन फर्स्ट दीज रूल्स. जी बेटा, this is the question number 1 third part, and the question number 1 third part he said that add, we have to add these terms. First of all, before addition we have to rearrange the terms like that one. We mostly we are taking that descending order. Descending order mean higher degree to lower degree. So first of all we have to write in the descending order and rearrange that one. पहली टर्म आपके पास क्या है बेटा, a cube. The next term a square minus 2a square b. b is ascending. The next term according to rule that should be a, लेकिन a वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो अब थोड़ी सी जगह छोड़ के यहां से आगे लिख दें प्लस b क्यूब. बिकॉज व्हाई आई एम डूइंग लाइक दैट, मुझे यहाँ पे a वाली टर्म नजर आ गई थी जो हम आगे लिखेंगे, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू लीव द प्लेस ऑफ दैट वन. हमने उसके लिए जगह छोड़ दी. सेकंड टर्म में 4a क्यूब, तो a क्यूब के नीचे a क्यूब वाली ही टर्म लिखेंगे आप, 4a cube. Now the next term is 2ab square. Should I write it here? No. इसके लिए सिर्फ वो टर्म आएगी जिसमें a स्क्वायर भी होगा, वो हमारे पास ये टर्म है, प्लस 6a स्क्वायर भी, प्लस 6a स्क्वायर भी. लाइक मीन सेम सेम हो, a स्क्वायर भी, कोफिशिएंट चेंज नो इशू, बट वेरिएबल सेम होने चाहिए. द नेक्स्ट टर्म इज 2ab स्क्वायर, क्योंकि ये b क्यूब है, तो इसके बाद अगली टर्म हमारे पास जो बननी थी, जिसके लिए हमने जगह भी छोड़ी थी, वो ये थी 2ab स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म नहीं है, छोड़ दो, नो इशू. नाउ द नेक्स्ट वन हियर, पहली टर्म क्या है, a क्यूब, तो a क्यूब वाली टर्म को सबसे पहले लिखेंगे. ओके, सो व्हाट इज दैट, माइनस 5a क्यूब. ओके, द नेक्स्ट a स्क्वायर टर्म, yeah, we have minus 4a square b. A square b. The next term 2b cube, where I have to write, good, this one, plus 2b square. Okay, here we have to write like that. कि अब हमने सिर्फ ये देखना है कि टर्म्स जो हमारे पास सेम सेम है. If there is no sign, the term is the first. If there is no sign behind or the before that, it means that is a plus sign. Or as I told you before, 1 is not written because how many a cube? 1a cube. ये पॉजिटिव 1 है, ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव जब दोनों प्लस की साइन हो तो हम क्या करते हैं, हम ऐड. सो 1 प्लस 4 क्या आ गया, प्लस 5. प्लस 5 और ये क्या है, माइनस 5. तो प्लस 5 और माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 0. मैं यहाँ रफ प्रोसीजर भी आपको दिखाता हूँ. a क्यूब तो कॉमन है, a क्यूब हमारे साथ कोई इशू नहीं है, इसके साथ a क्यूब आएगा. इधर हमारे पास a स्क्वायर b सेम आएगा, कोई चेंज हम इसमें नहीं करेंगे. इधर भी हमारे पास क्या आएगा, a b स्क्वायर, इसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते. इधर भी b क्यूब और b क्यूब सेम, बिकॉज वी हैव टू ऐड द लाइक टर्म्स. अब a क्यूब में क्या आएगा, जैसे आपको मैंने पहले बताया, ये है पहला नंबर क्या है, प्लस 1, फिर क्या है, प्लस 4, देन व्हाट इज दैट, माइनस 5. सेम साइन, 1 प्लस 4, 5, 5 minus 5, 0. So we have to write it here, 0. Next क्या आ रहा है, माइनस 2. ओके, देन प्लस 6, then minus 4. As I told you before, when the signs are opposite, then what you will do, that subtract, and the sign of big number, minus 2 plus 6, what is the answer, plus 4. And plus 4 and minus 4, that is also 0. एक तरीका तो ये है, दूसरा यूं भी आप कर सकते थे कि minus 4 और minus 2 have the same sign, तो जब दोनों को ऐड करेंगे सेम साइन के साथ, minus 6
-6 + 6 0। यहां भी अब 0 के साथ आप +0 लिखो या -0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर 0 हम मोस्टली हम +0 लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज 2 + 0 2, 2 - 0 2, 0 के साथ कुछ भी लिखो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कॉमनली हम प्लस यूज करते हैं। अब आ जाते हैं यहां पे, there is no term of other than 2ab cube, only there is single term, so the same number you have to write that one plus 2ab square. Now come here, b cube terms क्या है? What is the coefficient of this one? Its coefficient is equal to 1. What is the coefficient of this one? Plus 2, जिसके साथ कुछ ना क्या साइन होता है? Plus. If the signs are same, so what you have to do that one? Plus. Good. So you have to use the sign plus and operation addition 1 + 2 3. So what is the answer? +3. So +3 आप बेटा यहाँ लिख देंगे, that is your answer. बट अगर बात फाइनल आंसर की जाए, ये आपके पास रफ प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पे किया। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ओनली वो होगा फाइनल आंसर इज इक्वल टू 2ab square plus 3b cube. दैट इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, उसमें भी हम ब्रैकेट्स की सूरत में लिखते हैं, और ब्रैकेट में सूरत लिखने के बाद देन वी हैव टू ऐड द लाइक टर्म्स। यहाँ पे हमने रीअरेंज पहले ही कर दिया है, वो हमारे पास क्या होता है प्रोसीजर एडिशन का, पहले हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते उसके बाद करते हैं। सो वो जब मल्टीप्लिकेशन करने लगूंगा तब आपके पास वहां एक्सप्लेन हो जाएगा दूसरा मेथड भी। फिलहाल हम आप इसी एक मेथड को यहाँ पे ध्यान में रखें। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडिशन, थर्ड पार्ट। नाउ I will explain the question of subtraction also. ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। Now I want to explain question number 2 and that is the portion of subtraction। और subtraction के क्वेश्चन को पहले मैं लिख लूं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। जी बेटा, क्वेश्चन मैंने लिख लिया आपके लिए। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट, सब्ट्रैक्ट p from q। p फ्रॉम क्यू, इट मीन्स दैट क्यू में से पी को निकालना है। अगर आपके पास जब कंफ्यूज है तो मैं आपको छोटे से एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। छोटे से कहते हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो यानी 5 में से 3 को माइनस करें, दैट इज 5 - 3 2। ओके, फ्रॉम जब भी होगा वो ऊपर आएगा, अपर टर्म क्या होगी? फ्रॉम वाली। अब फ्रॉम क्यू का है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट क्यू। यहां से मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं आपके पास बेटा। होप ऑल ऑफ यू कैन एबल टू सी क्यू टर्म्स ऑलरेडी रीअरेंज हुई है, बिकॉज पहले ए क्यूब टर्म है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए है, फिर आपके पास विदाउट टर्म्स ऑफ ए। क्योंकि ए को हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो बी ऑटोमेटिकली असेंडिंग चलता है। देखो यहाँ बी की कोई टर्म नहीं है, यहाँ बी की वैल्यू 1 है डिग्री, यहाँ बी की डिग्री 2 है, यहाँ बी की डिग्री 3 है। तो ए डिसेंडिंग है, हम ए को डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे, a cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube। कहीं पे नजर ना समझ आए तो मुझे पूछना है। ओके, फ्रॉम p, p वाली टर्म्स बाद में नीचे आएंगी। सो a cube plus 2ab square सॉरी 2a square b plus 3ab square, ओके, प्लस b cube। अब क्वेश्चन तो ये ध्यान में आता है कि सर आपने इधर भी वैसे सेम किया, इधर भी सेम किया, सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? या दैट इज द एडिशन एंड डिफरेंस इज सब्ट्रैक्शन इज डिफरेंस इज दैट जो ये साइन है, इन सब साइन को निगलेक्ट करके आप नई साइन लगाएंगे, उसको चेंज कर देंगे। यानी अगर प्लस है तो माइनस में चेंज कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस में। जैसे आपको बताया अगर कोई साइन नहीं है उसके साथ क्या होती है? ओरिजिनली प्लस। अब हम साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो न्यू साइन क्या आ जाएगी? माइनस। ये भी क्या आ जाएगी? न्यू साइन माइनस। इसकी भी न्यू साइन माइनस। और नीचे वाले को देखना, ऊपर वाले को नहीं देखना। हमने ऊपर जो भी साइन है
no issue. We have to see the sign of the lower polynomial. इसका भी माइनस, अगर इनमें से कोई माइनस होता तो माइनस इंटू प्लस एंड प्लस इंटू माइनस। उसके बाद वही प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, वी हैव टू चेक द साइन ऑफ द बोथ। इसके साथ क्या है साइन प्लस और इसके साथ माइनस, साइंस दोनों क्या हो गई अपोजिट। जब अपोजिट साइन है तो क्या करते हैं हम प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन का। गुड, सो 1 माइनस 1 0, अगर चाहो तो 0 लिखो या यहीं भी इसे कैंसिल कर सकते, क्योंकि मैंने यहां पहले 0 लिख के दिया था, अब मैंने ये प्रोसीजर भी आपको बताया कि यहीं कैंसिल कर दें, यानी इसका मतलब 0 है। इधर ये प्लस साइन खत्म हो गई, अब न्यू साइन ये है माइनस और ये क्या है ये भी माइनस, दोनों साइन क्या है सेम। द साइंस आर सेम, सो व्हाट वी हैव टू डू दैट वन, वही सेम साइन लगा के ऐड करते हैं, तो माइनस की साइन आएगी और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया हमें वेरिएबल को कुछ नहीं छेड़ना, ना उसकी पावर्स को ना कुछ, क्योंकि लाइक टर्म्स है। इधर दोनों साइन क्या हो गई अब अपोजिट, अपोजिट साइन है तो क्या करते हैं हम गुड सब्ट्रैक्ट +3 - 3 0, गुड, ये भी कैंसल। सो व्हाट इज द लास्ट टर्म आंसर, व्हाट इज हियर माइनस और इधर भी क्या है माइनस, both have the same sign, so what we have to do that one, वही सेम साइन लगा के ऐड करने का। गुड, -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, क्या -2 क्या है ये -2b³। वेरी गुड, दैट इज आवर आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। रीअरेंज करने की भी इसमें आपके पास कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रीअरेंज ही था। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस। दोबारा बता देता हूं, फ्रॉम वाली टर्म हमेशा ऊपर आएगी। अगर जैसे सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, तो पहले मैंने q को लिखा, अगर वो लिखता सब्ट्रैक्ट q फ्रॉम p, तो फिर मैं क्या लिखता p को ऊपर, उसने लिखा सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, q में से निकालो, तो q ऊपर आएगा और उसके बाद ये क्या आएगा नीचे आएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अलबत्ता एक तो मैं क्लू बता देता हूं डायरेक्ट, अगर वो हमें कहता सब्ट्रैक्ट q फ्रॉम p, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो लास्ट आंसर है इसकी बस साइन चेंज कर दो, तो वो क्या बन जाएगा 5a² + 2b³, सॉरी 2b³। अगर वो आपसे पूछता कि सब्ट्रैक्ट q फ्रॉम p, तो जो फाइनल आंसर भी अगर आपने निकाला होगा तो सिर्फ उसके अंदर जो उसकी सिंबल्स हैं उनकी साइन चेंज कर दें, दैट इज अवर आंसर। ये आपके पास आंसर किस लिए है, सब्ट्रैक्ट q फ्रॉम p, सब्ट्रैक्ट q फ्रॉम p, और ये क्या सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। तो फ्रॉम को हमेशा आपने ऊपर रख के सॉल्व करना है। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स। एक लेक्चर मल्टीप्लिकेशन का होगा, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके पास डिवीजन का मैं दूंगा, उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।